bonds, phenoid, zygomatic, ethmoid, nasal. The hydrogen and potassium pump in parietal cell controlled by carbonic anhydrase, sodium potassium ATPase renin, potassium ATPase cyclooxygenase. Which antituberculous drug cause orange colored urine? Isoniazid, rifampicin, streptomycin, pyrazinamide. New stratum contain caudate and putamen, caudate and lentiform, caudate and globus pallidus externa, caudate and globus pallidus interna. ठीक है. Shortest half-life is GnRH, aldosterone, testosterone, prolactin. Which one of the following increases the metabolism of the drug carbamazepine, phenobarbital, cimetidine, sucralfate? Phenobarbital. Brain tumor most commonly occur after radiation is acute leukemia, meningioma, AML, CML. Dormant stage of malaria is egg, cyst, sporozoite, hypnozoite. Medial side of scapula fracture, which muscle is not damaged? Supraspinatus, infraspinatus, rhomboid, major, minor levator scapulae. Beginning of ventricular contraction displacing the valve upward cause which wave in JVP? C wave, A wave, X descent, V wave. Most reliable sign of irreversible cell injury is karyolysis, mitochondrial damage, pycnosis, autophagy of cell, massive calcium influx. Antiphospholipid characteristics is anti-Russell venom, antiparietal venom, bleeding tendency, none of the above. Glucose is absorbed in intestine through primary active transport, sodium, glucose co-transport, facilitatory diffusion, counter-transport, facilitatory diffusion. इंटेस्टाइन में कैसे ट्रांसपोर्ट करती है ग्लूकोज? अच्छा, आपने इसका निमोनिक ना नाग याद रखना है कि जैसे एक नाग, एक सांप होता है ना, वो इंटेस्टाइन से आपने याद रखना है नाग, NAG, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे एक नाग, एक सांप होता है ना, ठीक है, तो वो इंटेस्टाइन की जैसे स्नेक की तरह की मूवमेंट होती है ना, इस तरह आपने याद रखना है नाग. Na सोडियम आ जाएगा, G फॉर ग्लूकोज. तो इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज कैसे ट्रांसपोर्ट करती है? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट के थ्रू. ठीक है. Increased potassium in urine is due to decreased potassium secretion in DCT, increased potassium secretion in DCT, increased tubular absorption of potassium, increased intestinal absorption of potassium. ठीक है. Hyperextension of leg above the table caused by sartorius, semimembranous, rectus femoris, gluteus minimus. Goblet cell convert into Clara cells at nasopharynx, trachea, bronchi, terminal bronchioles, larynx. Post-operative analgesic in pancreatitis is ketorolac, paracetamol, morphine, pethidine, ketamine. Warfarin monitoring done by PT, BT, APTT, INR. चलें ठीक है, नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं. आज हमने पेपर 4 करना और कल इंशाल्लाह हमारी SK वॉल्यूम 1 एंड हो जाएगी. ठीक है, मेडिसिन के पेपर्स. फर्स्ट MCQ ये भी सारा ऑलमोस्ट रिपीटेड ही है, इजी है ये वाला पेपर. बायसाइनोसिस अकर बिकॉज कॉटन डस्ट में के अंदर होती है. रूबेला के अंदर बेबी वाज बोर्न. अभी जब बच्चा अगर पैदा होता है ना, तो उसमें एक तो IgM होती है, लेकिन IgM भी कौन सा? IgM 1 आएगी. ठीक है. पेपर पेज नंबर 64 SK 19 वॉल्यूम 1 पेपर 4 मेडिसिन 22 अगस्त आफ्टरनून. पेज नंबर 64 MCQ नंबर 3. A patient has cervical lymph node biopsy show non-caseating granuloma and is alpha AFB पॉजिटिव है. तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा? AFB पॉजिटिव है. करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? सार्कोइडोसिस AFB नेगेटिव होता है. चार्ली लेप्रोसिस द करेक्ट आंसर. Patient having congestive cardiac failure secondary hyperaldosteronism is caused by renin की वजह से. ठीक है. प्राइमरी कौन सिंड्रोम में क्या होता है? हाइपोकेलीमिया, हाइपरटेंशन, इंक्रीज अल्डोस्टेरोन, डिक्रीज रेनिन. सेकेंडरी में क्या होता है? अल्डोस्टेरोन भी ज़्यादा होता है, रेनिन भी ज़्यादा होता है. एडिसन में क्या होता है? हाइपोटेंशन होती है, हाइपरकेलीमिया होता है और इंक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन. ठीक है.
और कुशिंग डिजीज़ में क्या होता है, हाइपोकैलीमिया होता है, सेंट्रल ओबेसिटी होती है, मसल मायोपैथी हो जाती है, मसल मून फेस होता है, बफेलो हम स्पॉटेनियस ब्रूजिंग, स्किन स्ट्राया एंड प्रोक्सिमल मायोपैथी. A patient with a history of chronic foul-smelling diarrhea with no history of abdominal pain, no occult bleeding, on stool DR, fatty stool biopsy show villus atrophy, lymphocyte and crypt hyperplasia. What will you advise? Patient को हम क्या advice देंगे? Gluten free diet. Patient with complaint of regurgitation, chest pain, midnight, partially relieved by elevation of bed. तो जो GERD के पेशेंट होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, एक तो वो अपना सोते हुए बेड भी जो बेड साइड है वो थोड़ा सा एलिवेट करें, और फैटी डाइट सोने से एटलीस्ट आपने 2 to 3 आवर्स पहले बंद कर देनी है, नहीं खानी. ए फार्मर विद एक्सपोजर टू moldy hay dust trushes in ER with breathlessness, X-ray findings show bilateral infiltrates in upper lungs, most likely cause क्या होगा, aspergillus. CML में ट्रांसलोकेशन 922 होती है, बाकी हमने कल रिवाइज कर ली थी. 9 एंड ओल्ड मैन प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ फीवर, वेट लॉस, इन्वेस्टिगेशन के अंदर वाइट ब्लड सेल 25,000 है, 90% लिम्फोसाइटोसिस. बेस्ट मेथड क्या होगा, ट्राइफिन बायोप्सी करवा लेंगे. ये बेसिकली ना इसका सिनेरियो क्या बनता है, डायग्नोसिस क्या बनता है इसका, वेट लॉस भी हो रहा है, ओल्ड मैन है, लिम्फोसाइटोसिस है. अच्छा, इसका CLL भी हो सकता है इसके डिफरेंशियल्स के अंदर. और सेकंड क्या हो सकता है, चलिए ठीक है. जो बेस्ट मेथड होगा ना, बोन मैरो से भी ज़्यादा, अब देखिए ऑप्शन में बोन मैरो और ट्राइफिन दोनों है, तो आप ट्राइफिन को बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फा, बोन मैरो से ज़्यादा हम प्रियोरिटी देंगे ट्राइफिन बायोप्सी में. A jet engineer present to the ENT physician and complained that he works in an environment of loud noises. What kind of hearing defect he might be suffering from on an audiograph? तो वो जो जेट इंजीनियर है ना, वो इतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर मतलब काम करता है ना हमेशा, तो क्या होगा, उसे डेफनेस हो जाएगी लो फ्रीक्वेंसी साउंड में. जब वो ऐसे इन्वायरमेंट में आएगा जहाँ आवाज़ थोड़ी कम होती है फ्रीक्वेंसी की, तो उसे डेफनेस होगी, उसे कम फ्रीक्वेंसी की वॉइसेस सुनाई नहीं देंगी. ठीक है. स्टाइलोमेस्टोइड के नाल के अंदर से क्या चीज़ पास करती है, फेशियल नर्व इज ग्रेटर देन स्टाइलोमेस्टोइड आर्टरी. सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल मिड ब्रेन में किसके साथ अटैच होता है, रोस्ट्रल मिड ब्रेन के साथ. ठीक है. 45-year-old मेल presented in ER with fracture of pelvic bone RTA with shock due to excessive blood loss की वजह से. Group of neuron that are inactive normally is activated in the medulla by increased breathing exercise. तो एक्सरसाइज की वजह से कौन सा एक्टिवेट हो जाता है, वेंट्रल ग्रुप. 15 कहते हैं कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर जब भी आपको स्टोनी हार्ड मैस फील होगा तो वो प्रोस्टेट का कार्सिनोमा है. तो प्रोस्टेट कार्सिनोमा में लिम्फ नोड कौन सी लार्ज हो जाएंगे, इंटरनल आइलिक एंड सैक्रल. ये एग्जाम में भी आया था. नेक्स्ट MCQ से हमने बहुत दफ़ा कर लिया कि ECG भी नॉर्मल है, चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल है, तो उसे कोस्टोकॉन्ड्राइटिस एटिपिकल चेस्ट पेन है, नॉर्मल हार्ट है. Patient on MAO inhibitor is given first dose of barbiturates. What will happen due to interaction of these two? क्या होगा, potentiation of antidepressant effect. नेक्स्ट MCQ से कि पेशेंट है उसे एंटी एपिलेप्टिक्स ले रहा था, अब उसे साइड इफेक्ट ही आ गया, हाइपरट्रोफी ऑफ जिंजाइवा. ठीक है. तो वही किसका साइड इफेक्ट है, फेनिटोइन का. ठीक है. ये भी एक एग्जाम में आया हुआ था. ए मैन इज इन ICU बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ TCA. तो उसका मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट क्या आता है, कन्वर्जन्स होंगी उसे. CT brain of patient shows cyst with multiple daughter cyst. Which one of the following is the drug of choice? क्या होगी, albendazole. ठीक है. A person present with abdominal pain for 2 months. On investigation there is a mass in the duodenum that is found to be नहीं, इसका नाइक्लोसामाइड नहीं होगा, वर्म्स हैं. लेकिन जब भी, अच्छा आपने इस तरह याद रखना है कि जब भी CT स्कैन के अंदर अब डॉटर सिस्ट आ रही हैं, डॉटर से आपने याद रखना है बेटी, और एल्बिंडाजोल के अंदर भी BAN आ रहा है. ठीक है. तो जब भी डॉटर सिस्ट की बात की जाएगी तो आपने उसमें एल्बिंडाजोल चूज़ करना है. ठीक है. यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है कि सिस्ट विद जो डॉटर सिस्ट के साथ होती है ना, वो टीनिया अकाइनोकोसिस होता है. ठीक है. और जो आप दूसरा ऑप्शन कह रही है ना, वो टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन होता है. ठीक है. लेकिन जब डॉटर सिस्ट का वर्ड आ जाएगा तो वो टीनिया अकाइनोकोकस है. इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एल्बिंडाजोल. ठीक है. 21 कहते हैं कि पर्सन प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन फॉर 2 months. ऑन इन्वेस्टिगेशन देयर इज ए मैस इन द ड्यूरम दैट इज फाउंड टू बी अराइजिंग फ्रॉम सबम्यूकोजा.
सिक्रेटेड बाय दिस पार्ट ऑफ ड्यूटेनम फ्रॉम वेयर द मैस इज अराइजिंग। तो वो जो ब्रूनर ग्लैंड्स होते हैं ना ड्यूटेनम के अंदर, ठीक है, तो उसके जो म्यूकोसा वाली लेयर होती है ना, वहाँ से एंजाइम रिलीज होते हैं। कौन से क्या रिलीज होते हैं? एक तो अल्कलाइन म्यूकस रिलीज होता है, ठीक है, जो कि उसकी पीएच इंक्रीज करवा रहा होता है, और दूसरा यूरोगैस्ट्रॉन रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। हाँ जी, तो वो क्या चीज़ रिलीज करते हैं? एक तो उसकी पीएच इंक्रीज करवाने के लिए अल्कलाइन म्यूकस रिलीज होता है और यूरोगैस्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक है। Patient can't abduct eye, then excess abduction, palpebral elevation, a ridiculous sign of extraocular muscles। कहते हैं कि जब आप इस तरह के मसले आ रहे होते हैं आँख के अंदर, तो वही कौन सा साइन होता है? इसे कहते हैं मीजियो साइन, ठीक है। ये एक न्यू एमसीक्यू था इस पेपर में। After ischemic reperfusion injury, free radicals are released by which one of these? तो कौन रिलीज कर रहा होता है? न्यूट्रोफिल्स। Hormone causing increase in पेज नंबर 67, MCQs नंबर 24, पेपर 4। हार्मोन कॉजिंग इंक्रीज इन हेपेटिक, लीवर के अंदर तो वो प्लाज्मा प्रोटीन को एनाबॉलिज्म कर रहा होता है और एक्स्ट्रा प्रोटीन एक्स्ट्रा हेपेटिक में वो डिग्रेडेशन करवा रहा होता है। तो कौन सा हार्मोन होता है? कोर्टिसोल। Which one of the following paraneoplastic syndrome is associated with small cell carcinoma of the lung? तो वो कौन सा होता है? कुशिंग सिंड्रोम होता है। A 57-year-old patient presented with complaint of pruritus, tinnitus, blurred vision with burning sensation in fingers and toes along with rash. Symptom aggravate after taking hot bath. अब वो कहते हैं कि ये ना टिपिकल आपका स्नैरियो है पॉलीसाइथीमिया वेरा के साथ, ठीक है। उसमें ना आपके जैसे फेस के ऊपर हॉट बाथ वो पेशेंट लेते हैं ना, तो टिंगलिंग सेंसेशन, उसकी विजन ब्लर हो जाती है, उसे बर्निंग सेंसेशन हो जाती है और टिनाइटस होना स्टार्ट हो जाता है। ए पर्सन गोज टू हाई आल्टीट्यूड 5000 फीट, अब क्या हो जाएगा? पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिट विद प्रोप्टोसिस एंड लॉस ऑफ चीक सेंसेशन इज ड्यू टू, क्योंकि इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व डैमेज हो गई है। ए पेशेंट हैविंग पॉलीसाइथीमिया विद फेशियल कंजेशन एंड स्प्लिनोमेगैली, बेस्ट लेबोरेटरी इंडिकेटेड पॉलीसाइथीमिया क्या है? रेड ब्लड सेल का मैस इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट MCQs है, ए चाइल्ड प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ स्किन रैश एंड रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, हेपेटोस्प्लिनोमेगैली, IgA का लेवल रेज्ड है। ये हमने पहले भी बात की थी कि जब भी एंटिटी टेस्ट आपका पॉजिटिव आएगा, नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तो ये किसके अंदर आता है? जॉब सिंड्रोम के अंदर, जिसमें IgE का लेवल रेज्ड हो जाता है, ठीक है। 31 पेशेंट हैज़ ए ट्यूमर विच कॉज एमनेजिया बट ही रिमेंबर्स यूथ टाइम मेमोरीज, ठीक है, तो उसे पहले की बातें याद हैं। इसमें कौन सा डैमेज हो गया? हिपोकैम्पस के अंदर लीजन आ रहा है। न्यूक्लियस ऑफ रैम स्लिप कौन सा होता है? लोकस सेरुलस होता है। और नॉन रैम का कौन सा होता है? रेफी न्यूक्लियस होता है। प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन एंड सेंड सिग्नल टू द मसल कंट्रोलिंग आई मूवमेंट एनेबलिंग ओकुलोमोटर लूप के थ्रू होता है। अर्ली पल्मोनरी एंथ्राक्स ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। चाइल्ड प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन विद डायसेंट्री, स्टूल कंटेंट पल्स, रेड ब्लड सेल पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है? एंटेरो हेमरेजिक ई कोलाई, ठीक है। अब हम इसके बाकी टाइप्स देख लेते हैं। कहते हैं कि जो इंटेरो इन्वेजिव होता है ना, वो म्यूकोजा को अंदर इन्वेड करके डायसेंट्री यानी कि डायरिया कॉज करवा देता है। जो इंटेरोटॉक्सिजेनिक होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो ट्रैवलर्स डायरिया पर इंटेरोटॉक्सिन के थ्रू ट्रैवलर्स डायरिया प्रोड्यूस करते हैं। और जो इंटेरो हेमरेजिक होता है ना, वो O155 स्टेन के थ्रू डायसेंट्री कॉज करवा देता है और इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस करवाता है। और आगे फर्दर ये अगर टॉक्सिन रिलीज हो जाए तो ये वर्स्ट हो जाता है, अनीमिया करवाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है, हिमोलिसिस भी करवाता है, ठीक है। मतलब इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। 36 कहते हैं कि इन एन ICU पेशेंट विद CVP लाइन इन सबक्लीवियन वेन फॉर द पास्ट 10 days इज ऑन पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, ही इज डेवलप फीवर, ब्लड कल्चर शो क्लस्टर ऑफ ग्राम पॉजिटिव को कायदा, इन्फेक्शन इज मोस्ट लाइकली ट्रीटेड कौन सा होता है? वेंकोमाइसिन से हम ट्रीट करेंगे उसे, ठीक है, क्योंकि अब वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गया है ना, तो अब हम उसे वेंकोमाइसिन के नेक्स्ट जनरेशन की एंटीबायोटिक देंगे। मतलब उसे फर्स्ट सेकंड थर्ड से अगर नहीं वो क्योर हो रहा तो उसे फिर हम नेक्स्ट वेंकोमाइसिन देंगे। 37 कहते हैं 40-year-old टीचर प्रेजेंट विद ट्रेमर्स एंड पुअर हैंड राइटिंग, देयर वाज नो रिजिडिटी, द मूवमेंट वाज इंटैक्ट, देयर इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम। तो इसेंशियल ट्रेमर्स होते हैं उसमें क्या आते हैं? फैमिली हिस्ट्री आती है और उसमें हम कहते हैं बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, प्रोप्रानोलोल। क्रिस्टा फैल्सिफॉर्म इज अ बोनी प्रोजेक्शन दैट सेपरेट किसको करती है? फेशियल नर्व फ्रॉम इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व। कॉज ऑफ हाइपोटेंशन इन कार्डियोजेनिक शॉक कौन सी होती है? मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इसमें डिक्रीज हो जाती है। एंड ओल्ड मैन विद लीवर मैस HBS पॉजिटिव आता है, रेज्ड अल्फा फीटोप्रोटीन 1000 पे चली गई है।
ही माइट बी हैविंग, उसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया है। 41 कहते हैं कि लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकस ओक्लूडेड बाय ए ट्यूमर, व्हाट विल हैपन इन कैपिलरी सप्लाइंग द एरिया। तो उसमें क्या होगा, अगर उसने एक ट्यूमर हो गया है तो वो क्या करेगा, जो एल्वुलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर है ना वो इक्वल हो जाएगा इंस्पायर्ड एयर के, ठीक है। एम बैंड इन मल्टीपल माइलोमा इज सिक्रेटेड बाय विच वन ऑफ दीज सेल, कौन से सेल सिक्रेट करते हैं, प्लाज्मा सेल्स। पेशेंट प्रेजेंटेड टू इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, पम्प उसकी ना मोटिलिटी मतलब डिक्रीज आ रही है, 25% पे आ गई है, तो उसकी कॉज क्या है, इनफर्टिलिटी की। आप क्या करेंगे, सैंपल ऑब्टेन करेंगे, स्पॉन्ज कैसे लेंगे, कैल्शियम CaCl2 से, ठीक है। 44 कहते हैं कि 12, ये इस तरह का एग्जाम में भी MCQs आया हुआ था, सिमिलर थोड़ा सा, ऑप्शन थोड़े से चेंज थे। 44 कहते हैं कि 12-year old male known case of sickle cell anemia present with severe abdominal pain and jaundice, cause of sickling क्या है, hemolysis, child with multiple fracture and blue sclera, his uncle had same complaint in the past, diagnosis क्या है, osteogenesis imperfecta। बीटा थैलेसीमिया माइनर मैनिफेस्ट मोस्टली एस, क्योंकि उसमें HB जो है ना मिक्सड होती है बीटा और डेल्टा चेन्स के साथ। नेक्स्ट MC यूज है जब भी ग्रीन बायोफ्रिंजेंस के साथ कोंगो स्ट्रेन आता है किडनी में, तो वो कौन सा होता है, अमाइलोडोसिस होता है। सिक्वेंशल ट्रायल का मतलब क्या होता है कि जो सिंगल ब्लाइंड स्टडी होती है, सब्जेक्ट को नहीं पता होता कि उसे जो ड्रग दी गई है या प्लेसिबो दिया गया है, ठीक है। डबल ब्लाइंड में डॉक्टर और वो दोनों को ही नहीं पता होगा, ट्रिपल में जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसे भी नहीं पता होगा, ठीक है, किसी को भी नहीं पता होगा। इन स्ट्रोक पेशेंट डॉपलर शो इंक्रीज परफ्यूजन बाय विच मेटाबोलाइट, उसमें ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विथ कंप्लेन ऑफ फेशियल टिंगलिंग ड्रॉलिंग ऑफ स्टाइवा, तो इसमें 7th नर्व का डिफेक्ट आ रहा है ना, फेशियल नर्व, तो इसमें मतलब है लीजन कहाँ पे आ रहा है, सेरिब्रोपोंटाइन एंगल के ऊपर। नेक्स्ट MCQ से 52, उसमें उन्होंने दिया हुआ कि ए मैन आफ्टर RTA विद एक्सेसिव ब्लड लॉस हाइपोटेंसिव केप्ट इन वेंटिलेटर स्पॉट, पैप के अंदर 100% ऑक्सीजन दी जा रही है, लेटर पेशेंट डाइड ऑन एग्जामिनेशन ऑफ लंग्स, देयर वाज हाईली स्ट्रीक thickening of alveolar septa with increased number of macrophages and few neutrophils with dropping saturation likely cause क्या होगी, diffuse alveolar damage, infection, inflammation and radiation cause injury by ROS reactive oxygen species के through। मोस्ट न्यूमोरियस ग्लाइल सेल इन ग्रे मैटर के अंदर कौन से होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये आप फाइब्रस का वर्ड कट करते हैं, इसमें क्या आएगा, ग्रे मैटर के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। 55 कहते हैं कि वुड वर्कर, ठीक है। 55 कहते हैं कि ए वुड वर्कर प्रेजेंट विद इंजरी एट द बेस फर्स्ट एंड सेकंड मेटाटार्सल बोन के ऊपर आ रही है, तो कौन सी आर्टरी डैमेज हो गई है, डोर्सालस पेडस आर्टरी। 56 कहते हैं कि अगर आपको डायरिया हो गया, उसमें वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कौन सा इंटेस्टाइन का पार्ट आपने डिसेक्ट किया, आइलियम। टाइप ऑफ नेक्रोसिस एज ए रिजल्ट ऑफ एक्यूट MI, हार्ट के अंदर कौन सी होती है, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। चाइल्ड विद जनरलाइज्ड एडिमा, फर्स्ट टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है, यूरिनरी प्रोटीन होती है। 26-year old फीमेल प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ हर फिंगर्स टर्निंग वाइट देन ब्लू, मतलब ये रेनॉल्ड फिनोमेना आ रहा है ना, उससे पहले वाइट होती हैं, फिर वो ब्लू होती हैं, फिर रेड होती हैं। यंग मैन वर्किंग इन ए केमिकल फैक्ट्री फॉर द लास्ट 5 years प्रेजेंट विद पेनलेस हेमाटूरिया, पेन एंड वेट लॉस। ऑन हिस्टोपैथोलॉजी इट वाज कंफर्म दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम यूरिथ्रल कार्सिनोमा, कौन सा होता है, एनालिन डाई की वजह से। 60-year old male present with history of fever, significant weight loss, painful micturition, hematuria, flank mass, his HB is 18, तो पोलीसाइथीमिया हो रहा है ना उसे, और बाकी फीवर है, वेट लॉस है, मतलब ट्राइएट तो बन रहा है, फ्लैंक मैस, हिमाचूरिया, वेट लॉस और मिक्चुरेशन, ये किसका आता है, रीनल सेल कार्सिनोमा में आता है, ठीक है। अच्छा, और पेशेंट प्रेजेंट विद हिमाचूरिया, फेशियल फ्लशिंग, मैस इन द राइट आइलिक फोसा, तो रीनल सेल कार्सिनोमा की वजह से पोलीसाइथीमिया हो गया, हमने प्रीवियसली भी किया है। ए पर्सन लॉस 2 लीटर ऑफ स्वेट इन मैराथन रेस एंड ड्रिंक 2 लीटर ऑफ प्योर वाटर, तो अब उसमें क्या आ जाएगी, हमने पहले भी सीक्वेंस की हुई है। इंक्रीज होगा सबसे पहले इंट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम, फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी, और इस तरह एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का होगा। ड्यूरिंग द थोरेसिक सर्जरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को लाइगेट करते हुए कौन सी नर्व डैमेज होने का रिस्क है, इप्सिलैटरल फ्रेनिक नर्व। प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ इंक्रीज इन गिड्थ ऑफ एब्डोमेन विच इज एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिंग
विच इज़ कॉम्प्रिहेंसिव डिफाइंड एज, तो कॉम्प्रिहेंसिवली क्या होता है, रिवर्सिबल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंज इन रिस्पॉन्स टू फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्टिमुलस. A patient who is a known case of rheumatoid arthritis starting on DMARDs, he now presents with history of shortness of breath, chest X-ray revealed bilateral infiltrates, which drug is most likely responsible, methotrexate. With regard to counseling, the best treatment is it is a technique to help people themselves. ठीक है, आपने मतलब लोगों को ही चूज करने देना है कि वो अपने लिए क्या ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं. थर्ड वीकेंड में बेसिकली 2 जर्म्स लेयर बन जाती हैं. अगर 3 का ऑप्शन होता तो आप उसे भी चूज कर सकते थे. स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू फोरम एंड रोटेंडम से क्या पास करती है, मैक्सिलरी नर्व. ड्यूरिंग थोरेसिक सर्जरी, ये हमने कल भी किया था कि रेक्टस एब्डोमिनस को कौन सी आर्टरी सप्लाई करिए, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक. अगर इसके दो होती है ना, इसकी 2 ब्लड सप्लाई होती है, अगर एक हम लाइगेट भी करते हैं फिर भी उसे दूसरी ब्लड सप्लाई आती रहेगी उस मसल को. टीनेजर प्लेइंग विद गन सडनली इंजर्ड एट द राइट साइड just lateral to rectus sheath at the level of 9th intercostal cartilage tip. स्ट्रक्चर इंजर्ड मोस्ट लाइकली कौन सा इंजर्ड हो गया है, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर. ठीक है, अब इसमें ना जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के ऊपर से सारे स्ट्रक्चर पास होते हैं ना, ये आपको पता होने चाहिए, आपने एक दफ़ा रीड क्लास में कर लेने. ठीक है, इसमें से वो नेक्स्ट टाइम कोई भी ऑप्शन में दे सकता है. 72 कहते हैं कि पेशेंट विद हाइपोथायराइडिज्म हैज़ लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द पाम सरफेस ऑफ द इंडेक्स एंड मिडल फिंगर. तो हमने बात की थी कि कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर मीडियन नर्व डैमेज हो जाता है, तो वो लॉस ऑफ ऑपोजिशन, लो ऑफ मसल्स जो है ना सारे, तो ऑपोजिशन ऑफ थंब लॉस हो जाएगी. कंप्लीट क्रश एवल्जन इंजरी ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म विल लीड टू क्या हो जाएगा, सुपिनेशन उसकी वीक हो जाएगी. मोस्ट कॉमन पाकिस्तान के अंदर कैंसर ओरल कैंसर जो होता है, और ये कराची के साथ भी आता है. ये कराची के अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, ओरल कैंसर होता है. Boy walking barefoot, a pointed object pinches his plantar surface, he withdraws suddenly. Receptors कौन से involved होते हैं, free nerve endings. Sjögren's syndrome is associated rheumatoid arthritis, हमने कल भी किया था. पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी जिसकी ब्रांच है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की. अपर 1/3 ऑफ इसोफेगस को कौन सप्लाई करता है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी. मिडल को कौन सप्लाई करता है, थोरेसिक यूटर. लोअर 1/3 को लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी. 2 एथलीट्स हैं, हमने बात की है कि अगर प्रोफेशनल है, एक दूसरा भी न्यू है, तो जो प्रीवियस वाला एथलीट है उसमें ब्रेडिकार्डिया होगा, कार्डिक आउटपुट उसका इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा. ए पेशेंट विद नॉन लीथल एमआई आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ देर के बाद उसे अरिथमिया डेवलप हो जाएगा, और 4 आवर्स के बाद अरिथमिया होगा, 24 आवर्स में भी अरिथमिया होगा, 3 डेज बाद फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस एंड 7 डेज बाद कार्डिक टेम्पोनेट हो जाएगा, और 1 मंथ के बाद एन्यूरिज्म डेवलप हो जाएगा. ए पेशेंट विद क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम विल हैव क्या होगा, सुपरफ्लुअस एक्स क्रोमोसोम. XXY होता है ना, तो डबल एक्स होगा ना, एक एक्स्ट्रा होता है. क्रोमाफिन सेल्स टाइटली एडहियर इन एड्रिनल मेडुला, किसके साथ अटैच होते हैं, मेसोथीलियम के साथ. डायबिटिक पेशेंट विद ए वुंड ऑन द फुट, ग्रीनिश डिस्चार्ज एंटीबॉडीज का, तो वो कौन सा होता है, सूडोमोनास एरेजिनोसा. A patient with swelling of knee joint, decreased mobility, APTT prolonged है, which one of the following affect the platelets to cause the above finding. अब इसमें किस में आता है, APTT raised किस में आता है, हेमोफीलिया A के अंदर. A boy present with bleeding after finger cut, investigation revealed increased bleeding time, PT, APTT and platelet count was normal. What is the cause, क्या आएगा, platelet function defect. A patient after coronary bypass surgery came with complaint of purpura and petechial hemorrhage. On investigation bleeding time अगर prolonged हो जाता है तो वो किसके अंदर होता है. अब देखें उसकी पहले सर्जरी की हिस्ट्री आई हुई है. ठीक है, तो इसमें पोस्ट सर्जिकल यानी कि सर्जरी के बाद कोई ऐसी ड्रग ले रहा है जिसकी वजह से साइड इफेक्ट आना स्टार्ट हो गए हैं. ठीक है, तो पोस्ट सर्जिकल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप हुआ है. ए पेशेंट प्रेजेंट विद सबक्यूटेनियस रेड कलर के रैशेज आ रहे हैं, पर्पुरा एंड मैसिव स्लिनोमेगाली. सिम्टम रिजॉल्व विद स्प्लीनेक्टमी. ठीक है, तो ये कौन सा है, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस का स्नैरियो है. सर्जन वाइल डूइंग सर्जरी रिक्वायर फुल स्किल कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड्स एंड माइंड. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस. तो इसमें कौन सा क्या चीज़ यूज़ हो रही है, सेंसरी फीडबैक सिस्टम. ठीक है, मतलब वो हैंड्स के थ्रू पहले माइंड को सारी स्टिमुलस जा रही है, फिर माइंड से दोबारा नर्व पाथवे के थ्रू हैंड्स की मूवमेंट वो कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, तो ये एक सेंसरी फीडबैक सिस्टम है. ये भी एग्जाम में इस तरह का MCQs भी आया हुआ था. ए पेशेंट विजिटिंग पाकिस्तान डेवलप फीवर, हाइपोटेंशन, कोमा, हेडिक, रीनल पैरामीटर्स डीअरेंज, प्लेटलेट 90,000 के ऊपर है, रेटिक काउंट इंक्रीज है. तो कौन सा है डायग्नोसिस, फैल्सिपेरम मलेरिया, क्योंकि पाकिस्तान विजिटिंग की हिस्ट्री है उसकी. Patient has complaint of loose stool
मतलब उसके डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस आ गया ना, तो विटामिन B3 नायसिन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। और 1 कार्बन कैरियर अगर आएगा तो बायोटिन B7 की डेफिशिएंसी होती है, और 1 कार्बन अगर ट्रांसफ़र हो तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। A patient came with complaint of red raised painless lesion on forearm which increased in size with 3 months. He has diarrhea on few days and lymphadenopathy and oral thrush. Which virus caused this skin lesion? कौन cause करवाता है? HHV8. A pregnant lady with a history of lethargy delivered a baby who was listless. तो सीरम आयरन फेरेटिन अगर किसी का कम है तो ये कुछ चीज़ का स्नैरियो है, प्रेगनेंसी के बाद बच्चा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू से जब भी लेबर पेन के साथ प्रेग्नेंट फीमेल आती है तो वो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है। विच ड्रग नीड अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन टू एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी? कौन सी होती है? फिनोबार्बिटोन। एलोग्राफ्ट किसे कहते हैं? फ्रॉम द सेम स्पीशीज। Unconscious boy of age 11 brought in a state of shock in emergency, no peripheral vein accessible. अब अगर आपने लोअर लिम्स के अंदर वेन को सेक्शन करना है, वेनी सेक्शन करना है, तो आप कौन सी वेन के अंदर करेंगे? ग्रेट स्टेफनेस वेन के अंदर। ऑप्टिक नर्व कैरी सिग्नल्स टू द ब्रेन विच आर ट्रांसमिटेड बाय द फॉलोइंग न्यूक्लियस। किसके थ्रू होता है? ऑप्टिक की आपके पास स्पेशल सेंसरी है ना, तो स्पेशल सोमेट्रिक एफरेंट। An alcoholic female present with curved dyspnea from 2 weeks weight loss and hemoptysis. ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी के अंदर क्या आता है? फाइंडिंग्स क्या आएंगे? सेल विद इंक्रीज्ड न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड स्कांटी साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू से इन अल्कोहलिक पेशेंट्स स्टीटोहेपेटाइटिस डेवलप किसकी वजह से होता है? फैटी एसिड्स की वजह से, मतलब फैट्स की एक्युमुलेशन की वजह से। सेल विद हाई स्टीरॉइड्स, कौन से सेल होते हैं स्टीरॉइड की हाई सेंसिस किसके अंदर होती है? SCR, सॉरी पेरोक्सिसोम, ठीक है, पेरोक्सिसोम करवा रहे होते हैं सारी इसकी। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर SCR ही है, क्योंकि स्टीरॉयड के सिंथेसिस है ना, तो वो यहाँ इन्होंने चार्ली ऑप्शन गलत दिया हुआ है, मतलब जो डबल ए ऊपर दिया हुआ है ना, तो वो A और B और C, तो इसका करेक्ट आंसर SER ही है। स्टीरॉयड की सिंथेसिस कौन करवाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिनेकुलम, ठीक है, तो इसका चार्ली ऑप्शन बीटा वाला बनता है। आफ्टर स्लीपिंग देयर इज अ प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, प्यूपिल कौन कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। Among which one of the following will cause increased gastric emptying? कौन करवाते हैं? Increased intragastric volume. Neurotransmitter in slow wave sleep में कौन सा होता है? Serotonin. Singer vocals related to which one of the following? Thyroaretinoid वॉइस की पिच को कम करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज भी सेम है। पेशेंट हैज पीएच डिक्रीज है, बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, तो ये डिटो किस चीज़ का? स्टेरियो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। नेक्स्ट एमसीक्यूज में 107 में पीएच रेज्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, इसका मतलब है अनकम्पनसेटेड है, और बाइकार्बोनेट भी रेज्ड है, इसका मतलब है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, लेकिन वो अनकम्पनसेटेड है क्योंकि पीएच अभी नॉर्मल नहीं हुई। नेक्स्ट एमसीक्यूज में एस्थमा है, आपको पता चल गया होगा कि एस्थमा के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ही होता है, ठीक है। पीएच उसकी डिक्रीज है, बाइकार्बोनेट स्लाइटली रेज्ड है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रेज्ड है, तो ये तीनों किस में होते हैं? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया, तो इसका आंसर आ जाएगा 168। क्रेटिन क्लियरेंस का फॉर्मूला यूवी मल्टी जो इसका फॉर्मूला है ना क्रेटिन क्लियरेंस का। रिसेप्टर डिटेक्ट प्रेशर डिस्पाइट कंटिन्यूस प्रेशर, विच प्रॉपर्टी ऑफ नर्व्स हेल्प देम टू डिटेक्ट द कंटिन्यूस स्टिमुलाई? तो वो कौन से रिसेप्टर्स करते हैं? अडेप्टेशन के थ्रू। C इज इक्वल टू U मल्टीप्लाई V डिवाइडेड बाई P, बिल्कुल ठीक बताया आपने फॉर्मूला, ठीक है। ये छोटे छोटे ना आप लोगों ने माइंड में अपने रखने हैं, ठीक है, इसी के थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इजी, जिसको आता होगा उसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट एग्जामिनिंग ए स्लाइड विजुअलाइज अ ट्यूमर ऑफ मसल ऑफ GIT, अ प्रोटीन विच कनेक्ट द सेल टुगेदर, कौन सी होती है? फिब्रोनेक्टिन होती है। राइट माइक्रोशिया एंड एक्सटर्नल ईयर का हेलेक्स एंड नॉन कैनलाइजेशन ड्यू टू किस डिफेक्ट किस में आता है? फर्स्ट एंड सेकंड फेरेंजियल आर्च के अंदर। नर्व सप्लाइंग माइलोहयोइड इज सेम एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अदर मसल, कौन सी? एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। एपार्टीरियल ब्रोंकस किसको सप्लाई करती है? राइट सुपीरियर लोब को। आफ्टर डायपोडिसिस साइटोकाइन इन्वॉल्व इन न्यूट्रोफिल माइग्रेशन कौन सी होती है? C5a। A patient present with ingestion of something in drowsy condition, mild depression of respiration on duty. Doctor managed it with sodium bicarbonate. What he has ingested?
तो अब देखिए माइल्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है तो वो कौन सा होगा, चार्ली ऑप्शन आएगा फिनोबार्बिटोन, ठीक है। अगर सवेयर होता देन मॉर्फिन आप चूज कर सकते थे। A boy was standing and his friend pushed him from behind. The hip bent forward. What structure prevent the femoral head to displace in anterior direction? Iliofemoral ligament. Patient present with vasculitis PN का positive. What should be the cause? कौन सा होता है? Hepatitis B. During exercise blood flow to the lungs increase. किसके अंदर increase होता है? Ventilation zone 1 के अंदर होती है ज़्यादा और perfusion किस में ज़्यादा होती है? Zone 2 and 3 में. Sodium cyanide poisoning will affect which complex of the electron transport chain? Complex 4 को. Patient with shortness of breath having FeV1 2.1 पे है, FVC 2.9 पे है, ठीक है। Where is the pathology? SpO2 is normal and room temperature, लेकिन उसकी saturation slightly drop हो रही है 89 पे जा रही है, ठीक है। तो ये obstructive lung disease का सारा scenario है। Patient has tearing chest pain, unequal BP इन आर्म एंड मीडियास्टनल वाइडनिंग जब भी आएगा तो वो एओर्टिक डायसेक्शन का होगा। मोस्ट स्पेसिफिकली मैनिफेस्टेशन ऑफ पेंसिलिन हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी होती है? ब्रोंकोस्पैज्म। वारफेरिन डिफर्स फ्रॉम हेपरिन किसके थ्रू होती है? हम उसे मॉनिटर कैसे करते हैं? पीटीएन आईएनआर के थ्रू। लो डोज ऑफ एस्पिरिन किसको इनहिबिट करती है? थ्रोम्बोएक्सिन A2 को। एस्पिरिन नेक्स्ट भी एस्पिरिन इनहिबिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर एनाल्जेसिक पर्पसेस किसको इनहिबिट करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन को, ठीक है। ECG of a patient show prolongation of PI interval in successive beat followed by a drop beat. तो किसके अंदर आता है? Mobis type 1 heart block. A patient present with right superior quadranopia. कौन सा ट्रैक इन्वॉल्व होता है? लेफ्ट मायर लूप डैमेज हो जाता है, ठीक है। और आपने इसका वाइस वर्सा हमने किया हुआ है कि पैराइटल लोब के अंदर क्या होता है? अपर रेटिना आ जाता है, ठीक है। और कॉन्ट्रालैटरल इंफीरियर क्वाड्रिनोपिया आ जाएगा। लेडी आफ्टर हेमरेज, जब भी हेमरेज होगा, हेमरेज के बाद किडनी में कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट डैमेज होता है? ऑलवेज PCT। टेटनस का टॉक्सिन कौन सा होता है? इसमें आपको किसी को इसका सीक्वेंस याद है? न्यूरोटॉक्सिन। अगर एक्सोटॉक्सिन होता तो आप उसको चूज करते या न्यूरोटॉक्सिन को चूज करते? एक्सोटॉक्सिन इज ग्रेटर देन न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस आनी चाहिए। 131 कहते हैं कि 4-year child present with severe profuse watery diarrhea 20 episode per day, effortless vomiting from 12 hours. What will be the growth of organism in specific media? तो डायरिया के अंदर कौन सा होता है? विब्रो कोलरा या वाटरी राइस की तरह इसका जो होता है ना। A muscle that is attached to more than one joint and prevent the excessive movement of proximal joint, इससे क्या कहते हैं? फिक्सेटर्स कहते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूट्रोफिल माइग्रेशन कौन सी होती है? MRAT। 32-year-old फीमेल है, प्रेजेंट करी एमरजेंसी के अंदर हेडेक के साथ, डिस्निया के साथ, पाल्पिटेशन के साथ। शी इज लिथार्जिक एंड एंक्शियस, एग्जामिनेशन रिवील कोल्ड एंड क्लम्मी स्किन। बीपी उसका रेज्ड है। तो जब भी फियोक्रोमोसाइटोमा का स्नैरियो होता है तो हमने क्या किया था? अल्फा ब्लोकर्स आर ग्रेटर देन बीटा ब्लोकर्स, ठीक है। पहले हम अल्फा ब्लोकर से ट्रीट करते हैं। ए पेशेंट प्रेजेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एग्जामिनेशन, इरेगुलर पल्स, मिड डायस्टोलिक मर्मर है। तो मिड डायस्टोलिक मर्मर किसके अंदर आता है? पी माइट्रेल ऑन ECG, माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर। स्टैब वुंड ऑन द एंटीरियर चेस्ट आफ्टर क्रॉसिंग द इंटरकोस्टल मसल, सबसे पहले किस चीज़ को डैमेज करेगा? वो एंडोथोरेसिक फेशिया डैमेज होगा। वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल चेस्ट लाइन लाइंड बाय विद सेल्स प्रोड्यूस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो कौन बना रहा था? एपेंडाइमल सेल्स। फीमेल हैविंग कोल्ड इंटॉलरेंस, रैपिड वेट गेन, तो वेट गेन किसके अंदर हो जाता है? हाइपोथायराइडिज्म के अंदर। T3 T4 डिक्रीज होगा, TSH रेज्ड होगा। पेशेंट इज एडमिटेड इन ICU एंड केप्ट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर, ही इज एंक्शियस एंड डिप्रेस, व्हाट विल बी द डॉक्टर एडवाइस? डॉक्टर क्या करेगा? आपको काउंसलिंग अपने पेशेंट की करनी है कि आपको वेंटिलेशन की क्यों ज़रूरत है, क्यों आपको ICU के अंदर एडमिट किया गया है। बोन मैरो बायोप्सी के लिए वेंट्रल आइलैक क्रेस्ट को आपने पहले प्रेफर करना है। In the aortic opening, if diaphragm is constricted, which one of the following will be compressed along with the aorta? Aorta से क्या पास करता है? आटा। Aorta, thoracic duct and azygous vein at the level of T12. Esophagus की T10 होती है, उसमें से esophagus के साथ vagus nerve पास करी होती है, और T8 के लेवल से inferior vena cava के साथ right phrenic nerve. Recurrent synop with change in posture due to vasovagal stimulation. Surfactant presence lead to which one of the following? Increased compliance.
कंप्लाइंस उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी और कंप्लाइंस इंक्रीज हो जाएगी अगर वो प्रेजेंट है तो, अगर वो एब्सेंट है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इंक्रीज होमोसिस्टीन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। पेशेंट है उसका GCS, या आप कल भी कोई 2-3 बैक भी कोई पूछ रहा था कि GCS जब भी कम होता है तो आपके कोई भी है जो आपने एक ही लोब चूज़ करनी है, टेम्पोरल लोब ही आप चूज़ करेंगे, ठीक है। विच टेक प्लेस इन न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, विजुअलाइजेशन हो जाती है। व्हाट डज HIV डज आफ्टर एंट्री इनटू द सेल, क्या करेगा, सारे RNA को DNA के अंदर कन्वर्ट कर देगा। A woman undergoes abdominal surgery 10 years ago. Now she is diagnosed with hepatocellular carcinoma. Thought to cause hepatitis B. It is said that DNA and RNA viruses are oncogenes. Which one of the following is caused by RNA virus? तो RNA वायरस क्या कॉज करवाता है, T सेल ल्यूकीमिया कॉज करवा देता है। पेशेंट विद बाइकॉर्नुएट यूट्रस एसोसिएटेड विद अनोमली किसकी होती है, जेनिटल यूरिनरी सिस्टम की हो जाती है। अर्ली एडोलेसेंस विद ए प्रोमिनेंट फोरहेड, इवर्टेड लुकिंग ईयर्स एंड लॉन्ग, जब भी लॉन्ग मैंडिबल हो तो आपने आंखें बंद करके क्या चूज करना है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर कंप्लीट मोनोसोमी होती है। LH सर्च 2 days बिफोर ओवुलेशन 6 to 10 फोल्ड रेस्ट कर जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा क्या करते हैं, विनाइल मेंडेलिक एसिड इन द यूरिन। बेसल बॉडीज आर फॉर्म्ड बाय सेंट्रियोल। साइटोकैरेटिन किसका डिटेक्ट करते हैं, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया को, इन्फेक्शन और नियोप्लेजिया को। एडोलेसेंस एक्सर्ट मैक्सिमम इफेक्ट किसके ऊपर, आल्डोस्टेरोन एक्सर्ट इस मैक्सिमम इफेक्ट किसके ऊपर करता है, DCT के ऊपर। CCT देन DCT देन CT, और ADH के अंदर ऑपोजिट आ जाएगा। ए मदर विद ब्लड ग्रुप A नेगेटिव गेव बर्थ टू ए बेबी विद ए ब्लड ग्रुप ऑफ O पॉजिटिव, उसका फादर भी O पॉजिटिव था, तो आप कौन सा टेस्ट करवाएंगे, ABO इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट करवा लेंगे। ABO ब्लड ग्रुप आ गया ना, ठीक है। During the 3rd month of a embryological period, the cell which invade the epidermis and originate from the neural crust cell secrete, क्या secrete करते हैं, neural crust cell melanocytes जो हैं वो मेलानिन पिगमेंट रिलीज करेंगे। ऑन ECG of a girl सो टूथ अपीयरेंस वेव किसके अंदर आती है, ECG के अंदर, एट्रियल फ्लटर के अंदर। ए यंग पेशेंट का ब्लड प्रेशर इज 150/90, सीरम रेनिन उसका ज़्यादा है, रेनिन का लेवल इंक्रीज कौन करवाता है, रेस्ट मैकेनिज्म है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वाया रीनल नर्व। हर्निएशन बिटवीन C5 एंड C6, तो नर्व कौन सी इंजर्ड हो जाएगी, C6। बैक्टीरियल स्पोर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड हीट, वाई, क्योंकि वो, ये भी न्यू MCQ है इस पेपर का। अच्छा, जो न्यू वाले होते हैं ना वो आप थोड़े से हाईलाइट कर लिया करें, क्योंकि पुराने तो आपने काफ़ी दफ़ा रिवाइज कर लिए, जो न्यू वाला है ना बस आप वही नेक्स्ट टाइम रिवाइज किया करें। बैक्टीरियल स्पोर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन हीट, वाई, क्योंकि उसमें वाटर का कांटेक्ट भी कम होता है और उसमें कौन सा एसिड होता है, डिप्लोकोलिनिक एसिड होता है, ठीक है, इसलिए वो स्पोर जो है ऑक्सीडेशन और हीट से रेजिस्टेंट होते हैं। ये न्यू MCQ था। ए मैन वॉज हाइकिंग एंड नोटिस ए रैश अपीयर ऑन हिज आर्म विच वॉज नॉट कवर्ड बाय क्लोथिंग, ठीक है। तो बेसिकली रैश ग्रू इन साइज फॉर 2 days एंड देन सब साइडेड आफ्टर 2 weeks, मतलब वो खुद ही खत्म हो गया। तो ये कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, इसमें कौन सी आते हैं, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। Two scientists were doing experiment nerve conduction response change every time with same stimulation. Which one of the following is correct? इसमें correct क्या है, conduction की velocity। Parapneumotic effusion of lobar pneumonia, उसमें क्या होता है, प्रोटीन यूरिया हो जाता है, प्रोटीन ग्रेटर देन 3.5 होगी, ठीक है, मतलब एक्सुडेट के अंदर वो ज़्यादा ही होंगे ना, हर चीज़ ज़्यादा हो जाती है, प्रोटीन भी और LDH और सारा कुछ। एडिमा असाइटिस इन CLD पेशेंट, उसमें क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से अपोप्टोसिस इज इंड्यूस्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस। ए पेशेंट यूजिंग स्टीरॉइड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम ही इज एट रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर्स। ए यंग फीमेल डायग्नोज्ड विद MDR TB एंड टेकिंग सेकेंड लाइन एंटीट्यूबरकुलस ड्रग आफ्टर टेकिंग शी डेवलप इन लार्ज, मतलब से हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो गया, तो कौन सी ड्रग कर रही होती है, इथोनामाइड। इथोनामाइड सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग है जो क्या कॉज करवाती है, हाइपोथायराइडिज्म कॉज करवाती है, ठीक है। TB की जो ड्रग्स है ना इनमें से एक MCQ आना मस्ट होता है। लोएस्ट वीनस प्रेशर एट स्टैंडिंग, अगर एक बंदा खड़ा हुआ है तो सबसे कम प्रेशर किसके अंदर है, सुपीरियर वेना कैवा के अंदर। ए गर्ल हैज ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन बट एल्वियोलाई आर स्टिल इरिटेटेड ड्यू टू एल्वियोलर पोर्स की वजह से। टेक्निक यूज टू डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटी एंड माइक्रो डिलीशन इन क्रोमोसोम कौन सी होती है, फिश के थ्रू हम क्या चेक करते हैं, माइक्रो डिलीशन एंड ट्रांसलोकेशन, और माइक्रो एसे के थ्रू जीन की एक्सप्रेशन।
नेचुरल किलर सेल का फंक्शन क्या है कि वो कैंसरस सेल को किल कर देती हैं, एंटी कैंसर सेल्स होते हैं, एंटी ट्यूमर सेल्स होते हैं, और उसका मार्कर कौन सा होता है, और किल करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल को, इसका मार्कर कौन सा होता है, CD56, ठीक है, CD56 होता है, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है एक्सप्लेनेशन में इसका। अच्छा, एट 6 मंथ बेबी प्रेजेंटेड विद कंटिन्यूस डायरिया फॉर 10 days। अब जो कंटिन्यूस डायरिया ना वो किसकी वजह से, वो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की वजह से है, ठीक है। इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन आफ्टर पिट्यूटरी क्रेनियोफारिंजियोमा रिसेक्शन की वजह से। अब जो इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन क्यों हो रही है, क्योंकि HCG फॉलोड बाय GnRH। नेक्स्ट, अब देखिए इस पेपर में काफ़ी MCQs आए हुए हैं टीबी वाले। पेशेंट ऑन सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग। अब ऐसी कौन सी ड्रग है जो सुसाइडल थॉट्स करवा रही है, ठीक है, तो सुसाइडल कौन से, साइक्लोसेरिन। साइक्लोसेरिन खाने से वो सुसाइडल थॉट्स आते हैं उसे, ठीक है। सेरेब्रल एक्विडक्ट कहाँ से राइज करते हैं, मेसेनएन्सेफेलोन से। मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड इज ग्रेटर देन लोकल मेटाबोलाइट्स एंड ऑक्सीजन डिमांड। ट्यूमर सप्रेसर जीन कौन सी होती है, P53 होती है। व्हाट पल्मोनरी डिजीज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग रिजल्ट इन इनलार्ज ओवर इन्फ्लेटेड लंग्स, किसके अंदर आते हैं, एम्फाइसीमा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट MCQs की आपने लास्ट लाइन हाईलाइट कर ली है कि क्वैक की हिस्ट्री है उसकी, ठीक है। अब उसका यूरिन का क्रेटिन भी रेज्ड है, ALT भी रेज्ड है। यूरिन के अंदर जब भी कैल्शियम ज़्यादा आ रही हो ना, तो इसका मतलब है कि जो कैल्शियम है वो नेफ्रॉन के अंदर डेपोजिट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो जाएगी, ठीक है। इसकी उसमें पिक्चर भी बनी हुई है फर्स्ट एड के अंदर बहुत अच्छी, कि जैसे जो कैल्शियम जैसे जैसे डेपोजिट होता है ना, तो फिर वो येलो येलो सा आना स्टार्ट हो जाता है पिक्चर के अंदर। थर्ड, हार्ट साउंड ड्यू टू वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से। और इसमें ECG के अंदर आपको साउंड कैसी आती है, वेंट्रिकुलर फिलिंग पे आपको ECG के अंदर किस तरह की साउंड आएगी, सेगमेंट कौन सा बनता है, TP सेगमेंट। हमने क्या किया था, TP सेगमेंट। T टेस्ट किसके लिए यूज होता है, 2 टेस्ट के लिए, एनोवा के लिए। एनोवा किसके लिए करते हैं, 3 के लिए, काई स्क्वायर टेस्ट 2/2 का टेबल, और पाई चार्ट परसेंटेज के लिए। A patient present after RTA, you are advised to make histological slide containing muscle fasciculus sounds। ये ऐसे ही आता है, जब भी एक मसल को फेसिकुलस ने लपेटा होगा ना, तो वो कौन सा होता है, पेरीमाइसियम होता है। ए प्रेग्नेंट लेडी अगर मिथाइल डोपा ले रही है तो उसका मैकेनिज्म क्या है, एक्ट ऑन द सेंट्रल अल्फा 2 रिसेप्टर्स। ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्प्रेड टू विच बोनी स्ट्रक्चर, कहाँ स्प्रेड कराता है, स्फीनोइड बोन के अंदर, ठीक है। ये वाला पेपर क्लियर है, रिवाइज करें इसको। चलिए ठीक है, और कल आप इंशाल्लाह पेपर 5 प्रिपेयर कर लीजिएगा, और 6 हम क्लास में कर लेंगे, तो कल हमारी ख़त्म हो जाएगी। स्टाइलोमेस्टोइड कैनाल contain facial nerve, स्टाइलोमेस्टोइड आर्टरी, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, फेशियल आर्टरी। Superior cerebellar peduncle is connected to dorsal midbrain, rostral midbrain, dorsal to cerebellum, rostral cerebellum, caudal midbrain. अर्ली पल्मोनरी एंथ्राक्स की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, माइनोग्लाइकोसाइड, पेंसिलिन, पेंसिलामिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रो। इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, रेडिएशन कॉज इंजरी बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ऑन्कोजीन्स, प्रोटोन्कोजीन्स, रोस के थ्रू। Chromaffin cell tightly adhere in adrenal medulla by transitional epithelium, mesothelium, pseudostratified epithelium, epithelioid. Optic nerve carries signal to the brain which are transmitted by the following nucleus: somatic afferent, somatic visceral या SSA, special somatic afferent. Neurotransmitter in slow wave sleep is acetylcholine, dopamine, serotonin, norepinephrine, epinephrine. Patient present with vasculitis and PN का positive. What should be the cause? Hepatitis A, B, C, D, E. Ventricles and central canal lined by which cells produce CSF? Ependymal cells, Schwann cell, oligodendrocytes, astrocytes. Aldosterone exerts its maximum effect on which one of the following sites? PCT, LOH, DCT, and CT. Patient on second-line anti-tuberculous drug. Which drug cause depression and suicidal thoughts? Cycloserine, amikacin, ethonamide, linezolid, moxifloxacin. T-test is used to compare mean of 3 groups, 2 groups, 1 mean 2/2 का table and percentage.
चलें, आज हमने डबल ए की न्यूरो एनाटमी सॉरी न्यूरोफिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी रिवाइज करनी है, डबल ए के पल्स पॉइंट्स। अच्छा, मैंने कल ही शायद किसी से डिस्कस किया था, तो आप लोगों की रफ़ी तो मैम डॉक्टर ताहिरा के साथ साथ हो रही है, ठीक है। तो सिस्टम तो ऑलमोस्ट आई थिंक हमने कर लिए थे, और बाकी आप लोगों ने फ़र्स्ट एड के जो फ़र्स्ट एड कह रही हूँ, रफ़ी के सारे टॉपिक्स ना रिवाइज मैम के साथ साथ करते जाना है, ठीक है। तो मैं आपसे डबल ए करती जाऊँगी और हम माइनर्स इस तरह रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि CNS करेंगे, फिर हम एनाटमी करेंगे और फिर माइनर्स करेंगे, ठीक है। तो आपने डॉक्टर ताहिरा की क्लास में अपनी रफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। रफ़ी का अगर आप टेबल्स भी अच्छे से डेली रिवाइज करते जाए ना, तो आई थिंक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप बताएंगे वार्म रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, मतलब अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा या चार्ली या अल्फा डेल्टा। अच्छा, जो अल्फा डेल्टा होते हैं ना, वो कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, कोल्ड वाले होते हैं, ठीक है। और जो चार्ली होते हैं ना, वो वार्म रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अल्फा डेल्टा कोल्ड थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं और चार्ली वार्म रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन के साथ कौन से होते हैं, अल्फा अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा डेल्टा या चार्ली? IB, ठीक है, वेरी गुड। फ्री नर्व एंडिंग्स जो टच एंड प्रेशर रिसेप्टर्स को कैरी कर रही होती हैं, वो कौन सी होती हैं, अल्फा, IB, बीटा या डेल्टा या चार्ली? अच्छा, अभी हम अल्फा फाइबर्स के ऊपर, अल्फा डेल्टा, वेरी गुड। अच्छा, अब आप बताएंगे डीप स्टैटिक प्रेशर जो है कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, रूफिनी, मीजनर, पैक्सिनियन, मर्कल, क्रूसी? रूफिनी होते हैं। और कोल्ड को कौन डिटेक्ट कर रहे होते हैं, क्रूसी, मर्कल, डिस्पेक्सिनियन, मीजनर या रूफिनी? क्रूसी। फास्टेस्ट और लार्जेस्ट कौन से होते हैं, अल्फा अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा डेल्टा, बीटा फाइबर्स या चार्ली? अल्फा अल्फा। डे विजन के लिए कौन से होते हैं, रोड्स या कॉन्स? कॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये कलर विजन के लिए होते हैं या ब्लैक विजन के लिए होते हैं? कलर विजन के लिए होते हैं। अच्छा, स्ट्रेस रिफ्लेक्स बताइए, मोनोसाइनेप्टिक है, डाइसाइनेप्टिक है या पॉलीसाइनेप्टिक है? मोनो है, और ये किस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसकी एग्जांपल दें। नी जर्क, वेरी गुड। और विड्रॉल और फ्लेक्सर रिफ्लेक्स क्या होता है, डाइसाइनेप्टिक, मोनो या पॉलीसाइनेप्टिक? पोली होता है। स्ट्रेस के अंदर इसी EEG के अंदर, ब्रेन के अंदर स्ट्रेस के अंदर कौन सी वेव प्रोड्यूस होती हैं, N1 N2, थीटा या डेल्टा? थीटा वेव्स। और डीप स्लीप, इन्फेंसी एंड ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज में कौन सी होगी, N1, थीटा या डेल्टा? डेल्टा। अच्छा, आप बताएं कि इंडिकेटर ऑफ CSF लीक इज, कौन सा इंडिकेटर होता है इसका, नाम बताएं इसका। बीटा 2 ट्रांसफेरिन, वेरी गुड। अच्छा, बताएं कि वेंट्रिकल्स के अंदर CSF कितने ml बनता है, 150 ml, वेरी गुड। Evoked potential of anesthesia can be assessed by किस सेंसरी स्टिमुलस, ऑडिटरी, बेसल न्यूक्लियस ऑफ फोरब्रेन या माइनेट कॉन्टेन? कौन से होते हैं इसके, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन होता है। स्केलेटल मसल न्यूरॉन प्रेजेंट कौन से होते हैं, मल्टीपोलर, सूडोपोलर, बाइपोलर? स्केलेटल मसल्स के अंदर मल्टीपोलर होते हैं। और नेजल एपिथेलियम के अंदर रेटिना और कोक्लिया, इनके अंदर कौन से होते हैं, बाइपोलर होते हैं। सेंस ऑर्गन फर्स्ट डिवेलप इन फिटस कौन सा होता है, फिटस में सबसे पहले कौन सा डिवेलप होता है,
टच का होता है, टच का, ठीक है, टच का होता है। नेगेटिव फायरिंग फाइबर्स ब्रेन में कहाँ से अराइज होते हैं? परिकंजी से। हार्मोन रिलीज ड्यूरिंग इंटरमीडिएट टर्म मेमोरी इज, कौन से रिलीज होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होगा? सीरोटोनिन, वेरी गुड। नॉन अडेप्टिव रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? नोसियो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, नोसियो रिसेप्टर्स। फास्ट पेन का न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? फास्ट पेन का न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट होता है। और स्लो पेन का न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? सब्सटेंस पी होता है। पेन इनहिबिटरी फाइबर्स कौन सा होता है? पेन इनहिबिटरी फाइबर इनकैफ्लिन होता है। चलिए न्यूरो पैथोलॉजी पे आ जाते हैं। बटरफ्लाई ट्यूमर कौन सा होता है जिसमें जी फैब पॉजिटिव होते हैं? ग्लायोब्लास्टोमा। सोमामा बॉडीज किसके अंदर आती हैं? सोमामा बॉडीज मेनिंजियोमा। और स्ट्रोंशियम 100 किसका मतलब है डायग्नोस्टिक? स्ट्रोंशियम 100 श्वानोमा का। और रोजेंथल फाइबर्स किसके अंदर आते हैं? बच्चों का कोई ट्यूमर है, चाइल्डहुड ट्यूमर है, रोजेंथल फाइबर्स, पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर बच्चों में कौन सा होता है? मेडेलोब्लास्टोमा। और होमोराइट्रोसिटी किसके अंदर होते हैं? होमोराइट्रोसिटी मेडेलोब्लास्टोमा। कैल्सिफिकेशंस और कोलेस्ट्रॉल क्लिस्टर्स किसके अंदर होते हैं? कौन से ट्यूमर के अंदर होते हैं? सी आपने याद रखना है, C4 3C आते हैं ना इसके अंदर, C4 कैल्सिफिकेशन, कोलेस्ट्रॉल क्लिस्टर्स और क्रेनियोफ्रेंजियोमा, ठीक है, C आपने याद रखना है। और पीनियल ग्लैंड का ट्यूमर होगा तो वो पिनाइलोमा होगा। एल्जाइमर डिजीज के अंदर ब्रेन का कौन सा एरिया इन्वॉल्व होता है? आपने उस एरिया का नेम बताना है। एंटोराइनल कॉर्टेक्स। पोर्ट वाइन बर्थ मार्क सीन इन किस डिजीज के अंदर होता है? पोर्ट वाइन, ये रेड से कलर का चीक होती है ना उसकी। डिजीज का नाम आप सबको पता होगा ये तो। स्ट्रग वेबर सिंड्रोम, आपने अक्सर लोग देखे होंगे कि उनके फेस और पूरे 1/2 ऑफ द जो फेस होती है ना उनकी रेड कलर की होती है, मतलब एक ब्लड का बहुत बड़ा सा मार्क होता है उनकी पूरी चीक के ऊपर, तो वो कौन सा होता है? स्ट्रग वेबर सिंड्रोम होती है। लाइम डिजीज के साथ कौन सी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है? 5, 7, 9 एंड 10। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लायल ट्यूमर्स कौन से होते हैं? एस्ट्रोसाइटोमास होते हैं। और मोस्ट कॉमन बिनाइंग ब्रेन ट्यूमर्स कौन से होते हैं? बिनाइंग मेनिंजियोमा होते हैं। सोमामा बॉडीज किसके अंदर थी? मेनिंजियोमा के अंदर, ठीक है। विल्सन डिजीज के अंदर बेसल गैंग्लिया का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है? प्यूटामेन, वेरी गुड। सबड्यूरल हेमाटोमा के अंदर कौन सी वेन्स इन्वॉल्व होती हैं? आपने सीक्वेंस वाइज बताना है। ब्रिजिंग वेन्स इज ग्रेटर देन सुपीरियर सेरिबेलर वेन्स। और एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा के अंदर आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व है? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, हंटिंगटन डिजीज के अंदर डोपामिन का लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा और गाबा का डिक्रीज होगा, ठीक है। चलें, बेसिक आई थिंक हमने रिवाइज कर लिया इसमें। और आपके पास अगर टाइम मिले तो आपने इसके MCQs भी जितने हो सकते हैं कोशिश करनी है। और न्यूरो एनाटॉमी आपने बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। चलिए, कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों ने पूछ लेना। कल SK का आप पेपर 5 तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।